This episode is about the story of someone who started as a salesperson and ended up becoming a CEO. आप मेरे से झाड़ू लगवा लो, मेरे से अच्छी झाड़ू कोई नहीं लगाएगा। आप मेरे से गाड़ी चलवा लो, मेरे से अच्छी गाड़ी कोई नहीं चलाएगा। आप मेरे को सीईओ बना दो, मैं कोशिश करूंगा मेरे से अच्छा सीईओ का रोल कोई नहीं कर सकता। The CEO of one of India's largest food tech businesses. किसी भी दिन शायद 15, 20, 30 हजार आदमी बॉम्बे में आता है, पॉकेट में 500 रुपए और दिल में उम्मीद बस। दैट पर्सन कैन गेट ऑन टू अर्निंग a few hundred to 1,000 rupees in a day with us and करते हैं वो लोग। If you are someone who's looking for their first job, उनका एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है कि यहाँ पे करियर पाथ क्या है, कैटरपिलर थोड़ी ना हो। or you're looking at ramping up your resume to get a better job, this episode is for you. पॉलिटिक्स कभी भी बॉटम लेवल से नहीं होती है, वो लीडर्स ही एनकरेज करते हैं। This episode is a summary of what kind of people will be ruling the corporate world. That book captures why will rule the world. What does it take to get hired? तो मेरे को इस हसल वर्ड से प्रॉब्लम है। Best teams are driven with a lot of clarity. How do you become irresistible for a company? I mean, with that very short view of कि एक साल में I want to rise to the top. जॉब में 8 महीने में कैसे हो जाएगा? 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है। And how do you differentiate yourself from the rest of the crowd? मेरी 3-4 टिप्स हैं। On today's episode, we have with us Rohit Kapoor, the CEO of Food Marketplace at Swiggy. I was the only student in ISB who actually made money out of ISB. If you want to become an A player, this episode is for you. I remember meeting you first at the Oyo office a couple of years ago when I think Ritesh Malik was there and the Innovate Oyo merger was happening, the acquisition. And when I saw you for the first time, I felt a little intimidated and scared. And then I asked Ritesh, I said, is he always this serious? And then he's like, no, you need to have a meal with him to get to know him. And you'll really find that he's an amazing person to be around. And then cut to today, I'm really excited to see a different side of you so that I lose that image of you being serious in that Oyo office and I get to see the real you. So I'm very excited. Thank you. I'm trying to figure out कि ऐसा आपने क्या देखा था जितना सीरियस लग रहा था। I think I saw a marketing meeting going by. Okay. Yeah. Some That's why serious... I remember the names of the people Got who it, were got in the it. marketing team. Now I know. Okay. Yeah. Okay. But awesome, Rohit. Let's start from the start. You've been in a journey where you spent more than 16 years working in different corporates and then moving to become CEO of the food marketplace at Swiggy. I did the calculation of your timeline. I was trying to think. Yes, you're broadly correct. Actually, 17 years, 17 plus now 6. Yeah. So I really want to know what was the thought process behind moving to the different companies that you moved to, and especially from moving from corporates to startups. What were some of the experiences that you had that made you move this way? Actually, not much. इतना स्ट्रक्चर में कभी सोचता नहीं हूँ। तो मेरी लाइफ में अगर मैं सोचूं तो एक क्वेश्चन आता है ना इंटरव्यू में कि 5 साल बाद क्या कर रहे होगे, मोस्ट मीनिंगलेस यूजलेस क्वेश्चन। तो इफ आई लुक बैक इन माय लाइफ 5 years later एंड ट्राई से कि 5 साल पहले सोचा था क्या, तो आंसर विल बी इन ब्लॉक्स ऑफ 5 years. ऑलवेज द आंसर इज नो। कभी नहीं सोचा था। आई हैव ऑलवेज एंडेड अप डूइंग समथिंग व्हिच आई नेवर थॉट अबाउट अर्लियर। बट व्हेन आई वाज इन मैक्स हेल्थकेयर, so Max Healthcare got sold to KKR. KKR came in, there was a change of management, the promoters exited, so I was looking for a new gig. And there were options of staying in healthcare, becoming a CEO of a listed company, that kind of option, going to private equity. But something was happening in the market that day. I was early 40s. मेरे को लग रहा था कि कुछ चेंज हो रहा है. And ये है बात 2017-18 उस टाइम की, जब प्लेटफॉर्म स्केल हो रहे थे, उबर ओला बढ़ रहे थे, स्विगी जोमेटो बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. मेरे को लग रहा था कि टेक में कुछ हो रहा है और मेरा लास्ट चांस है, क्योंकि आई वाज नॉट लाइक 25-30 साल का, आई एम नॉट दैट एज. तो व्हाई नॉट सॉर्ट ऑफ गो इनटू दिस सेक्टर एंड फंडामेंटली टेक अ न्यू रिस्क, राइट? एंड आई हैव बीन लाइक दैट. आई ऑलवेज इन ब्लॉक्स ऑफ 5 years आई थिंक कि नेक्स्ट क्या बड़ा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, एंड आई वांट टू बी इन दोज सेक्टर्स व्हिच मैटर, व्हिच मेक अ डिफरेंस. एंड दैट पॉइंट आई वाज feeling कि this is the time, after this I won't have the opportunity. So I was very clear that I'm going to get into consumer tech, right? Yeah. It wasn't very clear whether consumer tech wants me or not. But when I started engaging, it seemed like the set of experience I had by not be out of design, but it just happened कि हो गया. And do you not feel scared, or did you not feel scared at that time when you were switching industries? Like, from healthcare, you moved to hospitality, and in a way, Oyo was also real estate. No. Then you're moving to delivery. No. Food so tech. I'm the ultimate journalist. तो आपको मैं इंडस्ट्री अपनी क्रोनोलॉजी में बताता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरे को ये डर तो लगता ही नहीं है कभी. Started with pharma as a salesperson. Then went into financial services for 2 years, start my own business. This is in the year 1996-7, around that time. Then I worked for a steel company. Then I worked in treasury.
Then I worked in McKinsey, where I worked in 5 sectors. I worked in banking, insurance, education, real estate, sports, right? Then I worked in a max 7 years. I worked in corporate. I worked in health insurance. I went and ran health insurance for a year. I went to South Africa and started a hotel business, the luxury hotel Oh, wow. business. Huh. I bought wine companies there. Hmm. I came back. I ran a healthcare chain, What did you not do? right? So by this time, you throw a sector at me, I don't even care. Beyond a point कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. I have preferences. तो जैसे मेरे को B2B नहीं पसंद है उतना. I like consumer businesses. I like dealing with consumers. So out of preference, I will always want to do a consumer business. I want to lead a consumer business. But honestly, within a consumer business, I think for me to adapt to the depths of a consumer business, not more than 1-2 महीना. And तो वो डर तो कभी नहीं था. And you said generalist, right? कि मैं एक journalist हाँ, हूँ. तो ये बिल्कुल. journalist word बड़ा use होता है, but according to you, journalist होता क्या है? Like, what's your core skill set? Who are you? तो एक ना किताब है रेंज बोल के. Hmm. I suggest everyone should read it because that book captures why journalists will rule the world and who are journalists. But let me simplify this, right? Yeah. So journalist वो होता है जो कि 4-5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. एक तो सीखने वाला होता है. जर्नलिस्ट में एक आपका है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए. नहीं तो जर्नलिस्ट का लोग सोचते हैं कि अच्छा इसको किसी चीज के बारे में कुछ नहीं आता. दैट इज नॉट द डेफिनेशन. वो होता है जो किसी चीज के बारे में कुछ भी सीख सकता है. एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है. उसके लिए आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए. आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं मैकेंजी में था और मैंने कोई एक रिटेल की स्टडी की थी 3 महीने से. मेरे को रिटेल में इतना ज़्यादा नहीं आता था. बट दैट टाइम देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू फ्लाई टू पेरिस टू एडवाइज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल चेन का सीईओ ऑन समथिंग, जो कि मेरे को बोला गया. मतलब 3 महीने हुए, आई हैव नो आइडिया. बट 2 दिन में, and McKinsey में that benefit also is that you can speak to anyone, you can speak to experts. I landed up in Paris. I had the meeting, which was a very successful meeting. Wow. So वो जो indexation है ना कि किसी चीज के बारे में कुछ भी सीख सकते हैं, that's number 1. वो fear नहीं होना चाहिए. Second है कि जर्नलिस्ट टैलेंट को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि आप उनको ग्रोथ एरिया में डाल दो तो वहां फोड़ देंगे वो. आप उनको डिफेंस में खिला लो कि भाई कोई क्राइसिस चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग हंकी डोरी, दे विल रीस्ट्रक्चर द कंपनी. आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एबिलिटी, द एबिलिटी टू ड्राइव ग्रोथ एंड द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एंड रिस्ट्रक्चर इफ नीड बी, कि ग्रोथ सैक्रिफाइस करके भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है. आई थिंक ये तीनों कॉम्बिनेशन में बहुत तगड़ा है आपके पास. देन यू आर अ जर्नलिस्ट, एंड जर्नलिस्ट हु कैन गेट इनटू एनी सिचुएशन एंड डू समथिंग अबाउट इट. क्योंकि देखिए स्पेशलाइजेशन में क्या होता है ना कि लर्निंग कभी आप स्लो भी करो चल जाता है. क्योंकि अगर 20 साल से एडिटिंग कर रहे हो तो ये क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ कि ये जो आपको आज आता है इसमें से कितना आपने पहले 5 साल में सीखा था, उसके 5 साल में आप देखोगे उसमें जाकर के कि काफी सारी जो लर्निंग का ब्लॉक होता है स्पेशलिस्ट में 5-7 साल में हो जाता है, और उसी को इनकैश करके एन्युटी चलती रहती है. वो जर्नलिस्ट में पॉसिबल नहीं है. But now you're known as this IPO guy, and we were talking about it, right? Which almost seems like a specialist profile because companies feel कि मतलब अब हम public जाने वाले हैं, या अगर एक company सोच भी रही है IPO के लिए तो you've become this name that people want to get on board for it. ये तो How do you think that's happened? ये तो अच्छी रेपुटेशन है. हाँ, I can live बहुत with it. अच्छी रेपुटेशन है, बट यही मैंने 5 लोगों से बात करी एंड सब यही कहते हैं. था. हाँ. अच्छा नहीं, ये देखो ये तो रेट्रोफिटिंग है को सब हम we all want a logic fitted to a post facto situation, right? जब मैं ओयो ज्वाइन किया था फॉर एग्जांपल, एंड वी फाइल ओयो डिड फाइल फॉर आईपीओ समवेयर, आई डोंट थिंक आई वाज द गाय हायर्ड टू लीड द कंपनी टू आईपीओ एट ऑल, राइट? दैट वाज नॉट ट्रू. आई वाज द गाय हायर्ड बिकॉज़ आई वाज गुड टैलेंट एंड विल कम एंड क्रिएट अ फ्यू न्यू बिजनेसेस, राइट? ऐसा था नहीं, पर ऐसा हुआ कि गॉट इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एटसेट्रा. स्विगी भी आई डोंट थिंक हैंड ऑन हार्ट ना मेरे से, तो मैं इतने बता सकता हूँ बिकॉज जब आई हैड एंगेज विद स्विगी ऑलमोस्ट 6 महीना. जब मेरा इंटरव्यू क्या बोलूँगा, डेटिंग टाइप लग रहा था मेरे को. तो they reached out to you, you reached out to them. they reached out to me. एंड हर साल 3-4 बार मिला मेरे को. मैं 15 लोगों से, मैं 6 लोगों से 15 बार मिला हूँ, राइट? तो वहाँ पे एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ था कि यू नो पब्लिक लेके जाना कंपनी को इसलिए कर रहे हैं. ये था कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, ये कर रहे हैं. बट अब मैं लग कह सकता हूँ, जो भी कह सकता हूँ. और एक और कंपनी है जो कि ऑफ बिजनेस विच इज I'm an angel also on the board of Oxizo, which also has appointed bankers, and there's some, at least in the newspapers, you have read ki there's some plan. So I think people fit all this together and form a logical, nice story.
It's not a bad reputation to have, so Yeah, I'll you've live with become it, the lucky right? charm now, so it's But good, right? but we'll see. I think, when I was, I had this visualization that I wanted to be a CEO because I saw this like Dhasu video of Indra Nui on the internet, and She's I was very just impressive, like, no? she's like an enigma. Like Yeah, I'm a very big impressive. fangirl. Very, very impressive. So I saw that video and I was like, if I can be like 50% of her in life now, it's a life well done. And so that was my first kind of tryst with wanting to become someone in a professional setup and all of that and grow. But for you, I want to know, did you know this beforehand that this is what you मैं wanted to CEO become? बनूंगा? हाँ, चांस ही नहीं है, ऐसा कुछ कोई नहीं वीडियो था। देखी थी, कुछ था मतलब नहीं, like नहीं, अंदर नहीं, से आपको एक- कॉलिंग? अरे कुछ नहीं था। हाँ, मेरी कोई कॉलिंग वॉलिंग नहीं होती है, हाँ, राइट। मैं जब, मेरे को याद है 1998 में उषा मार्ट में था, तो एचआर ने एक वो कराया था कि वो होता है ना कि रिटायरमेंट लेटर लिखो, कि रिटायरमेंट में लिख रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ लाइफ में एंड व्हाट इज योर बेस्ट केस आउटकम। तो तब मैंने लिखा था कि अगर मैं 50,000 रुपये कमा के महीने का एंड ऑफ रिटायरमेंट अगर मैं अचीव कर लिया 50,000. हाँ हम्म. तो आई वुड हैव क्रैक्ड इट, Yeah. राइट। सो आई हैड, मेरे को सीईओ बनना है। एक हम्म. तो मैंने कभी टारगेट नहीं किया, हम्म. राइट। और मैंने ये नहीं कहता कि दूसरों को नहीं करना चाहिए, हम्म. करना चाहिए शायद, मैंने नहीं किया था। हम्म. पर हाँ एक चीज़ जरूर की थी जो कि आई थिंक इज द मंत्रा फॉर मी ऑलवेज, कि आप मेरे से झाड़ू लगवा लो, हम्म. मेरे से अच्छी झाड़ू कोई नहीं लगाएगा, हम्म. राइट। आप मेरे से गाड़ी चलवा लो, मेरे से अच्छी गाड़ी कोई नहीं चलाएगा, राइट। आप मेरे को सीईओ बना दो, मैं कोशिश करूँगा मेरे से अच्छा सीईओ का रोल कोई नहीं कर सकता। तो वो जो कोई भी काम मेरे को जिस समय मिलता है ना, आजकल मेरे को लगता है कि अगर आपके इफ यू आर रीचिंग आउट यंग ऑडियंसेस, Yeah. आई थिंक सब लोग फ्यूचर में रह रहे हैं हम्म. कि 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। अरे जो अभी कर रहे हो उसको तो ढंग से करो। हम्म. लोग दुनिया देखती है, वर्ल्ड इज लार्जली अ फेयर प्लेस, Yeah. राइट। ये जो वर्ल्ड की But अनफेयरनेस I जो don't think people believe that anymore. ये बिल्कुल गलत है। हम्म. मेरे को लगता है वर्ल्ड इज ऑन एन एवरेज फेयर प्लेस। आप अगर लाइफ में देखोगे, अगर आपने अच्छा काम किया 20 साल में, जरूर हुआ होगा एक सब बार कि आपको लगा होगा कि नहीं इसका मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए था, हम्म. नहीं मिला, पर 10 बार मिला भी तो। हम्म. वो मिला जब 10 बार वो लोग भूल जाते हैं। और So जो do you think that, sorry to cut you there, but do you think that your hard work is what sort of attributed, this being the best at some particular skill is what's attributed to you becoming a CEO today? हाँ, आई थिंक आई जस्ट जो वॉट एवर केम माई वे, आई डोंट थिंक टू मच कि अच्छा, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बता, कि जब मैं अपने कंपनी में लोग आते हैं, यंग लोग या 3-4 साल वाले एक्सपीरियंस वाले, तो वो उनका एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है कि यहाँ पे करियर पाथ क्या है। मोस्ट यूजलेस क्वेश्चन टू आस्क। अरे कोई वो थोड़ी कैटरपिलर थोड़ी ना हो कि कैटरपिलर से फिर बटरफ्लाई बनोगे, फिर ऐसे बनोगे, फिर ऐसे मर जाओगे इस दिन, ऐसे नहीं होता। द क्वेश्चन टू आस्क इस कंपनी में टैलेंट का डेफिनेशन क्या है, व्हाट यू डिफाइन टैलेंट इन दिस कंपनी, कौन से लोग सक्सीड करते हैं इस कंपनी में। और हर कंपनी में अलग पैरामीटर्स होते हैं, राइट। अगर उसका आपने मंत्र समझ लिया, और उसका मंत्र 2-3 कॉमन ही होता है। एक, हार्डवर्क तो चाहिए। दूसरा, शिद्दत चाहिए। शिद्दत इज डिफरेंट फ्रॉम हार्डवर्क। शिद्दत होती है कि एक लगन, एक बिलीफ कि ये करना है, राइट। थर्ड है, आई थिंक एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए थोड़ी सी कि लोगों से मिलके काम कर सके। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। तो अगर वो आप हर चीज जॉब में कर रहे हो ना, आपको लोग देखते हैं, पीपल आर वॉचिंग यू एंड यू गेट द सक्सेस। आई डोंट थिंक यू नीड टू फाइट। एंड आजकल हो गया वो मैनेजर को पटा के ये सब लिंक्डइन स्टोरीज है, लिंक्डइन कहानियां है। ये सच में इतना कोई इविल मैनेजर भी नहीं होते हैं। वो कैटबर्ड टाइप जो हमको इमेजिन करते हैं घूम नहीं रहे होते दुनिया में कहीं पे, राइट। बैड लक कैन हैपन टू एनीवन, बट आई थिंक दैट हैज बीन माय मंत्रा कि आप जो काम मेरे को दोगे, मेरे से अच्छा कोई नहीं करेगा। एंड ये जो और वो आज भी सच है। हाँ, एंड मेरे से अच्छा आईपीयू का रोड शो नहीं करेगा। अब एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा। अब वो आउटकम आए नहीं है, वो अलग बात है। एंड ये जो 3 चीजें आपने डिस्क्राइब करी, इज दिस व्हाट यू लुक फॉर व्हेन यू आर हायरिंग समवन? हायरिंग समवन इज दिस बहुत द ओनली थिंग और व्हाट एल्स प्लेज अ पार्ट? 4 चीजें देखता हूँ मैं हायरिंग के टाइम पे। एक, आपने लाइफ में एडवर्सिटी झेली है कि नहीं झेली है, और जब झेली तो क्या किया, राइट। एंड एडवर्सिटी ऐसा नहीं कि जॉब में होनी चाहिए, कभी भी हो सकती है। क्लास 5 में फेल कर गए थे, उसके बाद क्या हुआ, राइट। शॉक संभालने की नहीं बेसिकली। सेकंड, कि ड्राइव कितनी है, कुछ करना चाहते हो या सिर्फ बातें करना चाहते हो, राइट। थर्ड, कि आपके अंदर एक एम्बिशन है कि नहीं। बेसिक वो एम्बिशन ही नहीं सीईओ बनना है, बट एम्बिशन कि भाई आगे बढ़ना है, लाइफ में उन्नति करनी है। फोर्थ इज एक्स फैक्टर। उस एक्स फैक्टर में मेरा सिंपल टेस्ट रहता है, इस इंसान के साथ
अगर मैं गलती से एयरपोर्ट में 3 घंटा लटक जाऊँ क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई, तो मैं भाग जाऊंगा कॉफ़ी पीने या साथ में बैठ के बात करूंगा, राइट? और ऐसे लोग आप जानते हो जो कि आप बोले कि भैया कहीं जाकर कॉफ़ी पी लेते हैं, बच जाओ। और ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप बैठ के 3 घंटा बात कर सकते हो। मेरे लिए वो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एंड ये ड्राइव 3-4 चीज़ें हैं तो आई थिंक फॉर मी इट्स अ थम्स अप मोस्ट। एंड ड्राइव जैसी चीज आप एक इंटरव्यू में कैसे टेस्ट करते हो? एग्जाम्पल से, लाइफ के हम्म, एग्जाम्पल से कि लाइफ में क्या किया है। लाइक हम्म, मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड सवाल कम पूछता हूँ। मेरे 2 सिंपल सवाल होते हैं कि बचपन से अपनी कहानी सुनाओ, क्या-क्या डिसीजन लिए, क्यों लिए, राइट? और एक ये होता है कि कौन सा डिसीजन आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा किया, कौन से डिसीजन बैकफायर हुए। और बैकफायरिंग में जो भी वो गंदे वाला आंसर देते हैं ना कि मैं तो इतना हार्ड वर्कर हूँ कि मैं सोता नहीं हूँ, यही मेरी वीकनेस है। मतलब यार मेरे सर पे थोड़ी ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ तो इज्जत दो, ऐसे बकवास क्यों कर रहे हो? हाँ। And when you're looking at a candidate, what is something that really puts you off? Like, what's the worst thing to प्रिटेंस, do in an प्रिटेंस, interview? प्रिटेंस, Hmm. जो आप हो नहीं वो दिखाना चाह रहे हो। और एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर्स विल फाइंड आउट इन लाइक फर्स्ट 3 मिनट्स। Yeah. How many Yes. hiring mistakes have you made consciously? Like, now that you know, you can count. Now my hit rate on hiring is very good now. Yeah. I think but still आज के दिन मेरी 5% तो हो ही जाता है, कितना भी कर लो। तो अब मेरा ये भी हो गया कि अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यूज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन रेफ चेक्स। खासकर सीनियर लेवल पे, तो मैं सीनियर लेवल पे ना इंटरव्यू पे अब मैं बिलीव ही नहीं करता क्योंकि सबको बात करना आता है, राइट? बट रेफ चेक पे बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि जब आपने एक्चुअल काम किया किसी के साथ, और रेफ चेक नॉट ओनली फ्रॉम योर बॉसेस, Yeah. वेरी इंपॉर्टेंटली फ्रॉम पीपल हु आर बिलो यू, वेरी इंपॉर्टेंटली फ्रॉम योर पियर्स, इफ पॉसिबल फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो हम रेफ चेक बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो माई एंड द अदर सोशल पे आऊँगा, सोशल मीडिया बात करते हैं। हाँ, that's what I want to go to. कि how important is that? यार सोशल मीडिया पे पीपल नीड टू वॉच आउट, Yeah. राइट? वो कुछ भी लिख रहे हैं, Hmm. राइट? किसी भी कंपनी को लिख देते हैं। मान लो किसी एक टैक्सी लेट आ गई, न्यू स्कैम, न्यू फ्रॉड, टैग कर देते हैं यू उनकी रियली नीड टू बी कंपनी। केयरफुल बॉस। ये Yeah. एक सर्विस मिस्टेक और स्कैम और फ्रॉड में बहुत फर्क होता है, राइट? तो सोशल मीडिया पे किसी को लगता है कि फॉलोअर बढ़ाने हैं, बट नौकरी भी तो चाहिए अगले दिन। एंड यू कौन से थिंक प्लेटफॉर्म्स चेक करते हो? आज के दिन में हायरिंग में सारे प्लेटफॉर्म चेक होते हैं जो हो सकते हैं, सब लोग करते हैं। And is there some candidate that you like you really like, you wanted them on your team and then you saw their social media and you were like, no? नहीं, नो तो नहीं होता है, बट एक राउंड और हो जाता है। पूछ लेते हैं कि अच्छा ये क्या, एंड इट इज नॉट अबाउट पर्सनल व्यूज, इट्स ओनली व्हेन वी फाइंड समथिंग वेरी वेरी एग्रेजियस। नॉर्मल देखो रेंज ऑफ ओपिनियन सबकी होती है, दैट्स फाइन, बट समबडी इज लाइक रियली वैकी ऑफ द चार्ट्स और वेरी पब्लिकली शेमिंग अदर कंपनीज एंड अदर थिंग्स, दैट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट सेइंग कि यू नो हाउ डज दैट विल द पर्सन रिप्रेजेंट द ब्रांड वेल। बिकॉज कहीं ना कहीं तो आप भी ब्रांड हो ना। आप जब लिंक्डइन पे लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, नीचे कंपनी का नाम लिखते हो, तो कंपनी का नाम अटैच्ड है आपके साथ, तो वी हैव टू बी केयरफुल। Tell me about a candidate that you recently hired and you loved, you absolutely loved, and what was it about them or what was it on their resume? Like, kya aisi cheez thi that stood out? And the reason I'm asking a lot of these questions is because people who are going to be watching this are people who are in their, late teens, early 20s, looking for the next opportunity, who may have this dream of becoming a CEO one day or just being big in a corporate structure, right? So for them, it's very important to know ki, like, how do I make myself stand out, because competition is real now. तो स्टैंड आउट करने के लिए मेरी 3-4 टिप्स हैं। अगर फिजिकल इंटरव्यू है, एक तो गो वेल प्रिपेयर्ड विथ अंडरस्टैंडिंग द कंपनी करती है, और दूसरा इफ यू नो द इंटरव्यूज नेम एटलीस्ट वो उनकी पर्सनैलिटी, बिकॉज पीपल आर पीपल लव द फैक्ट दैट यू गिव देम इनफ रिस्पेक्ट टू रिसर्च अबाउट देम। आप किसी से भी बात कर लो, उसको बोलो कि आप बचपन का आपने ये किया था, वो बोलता है इसने बचपन के बारे में पढ़ के आया है ये, राइट? इट जस्ट मूव पीपल, राइट? तो आई थिंक दैट्स वन टिप आई हैव। सेकंड इज ड्रेस वेल प्लीज, राइट? मतलब इट डजंट मीन दैट यू हैव टू गो इन अ साल्वे, Ferragamo and all that, but dress well, be presentable. Even if you're wearing a t-shirt and a jeans, tuck it, shave, show up properly. It helps. It's not a minus point. Third is, I think, on the answers be authentic ना। जो नहीं आता है बोल, तो नहीं आता है। जो आता है उसको अच्छे से बोलो, जो थोड़ा कम आता है उसको caveat कर दो कि इसको मेरे हिसाब से ये हो सकता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एवरीबडी बिलीव्स कि हर क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, राइट? एंड फोर्थ इज, आई थिंक, जस्ट genuinely deeply show interest in the job itself, कि not go by the title of the job,
बट शो इंटरेस्ट की रोज की क्या करना पड़ेगा. Hmm. इनफैक्ट आई ऑल्सो एडवाइस पीपल की whenever you think of a job, taking up a job, always understand the lowest common denominator, not the highest common Yeah. factor Hmm. of the job. Hmm. अगर जॉब का LCD ये है Hmm. मेरा, मान लो कि मेरे को दिन में आके 4 बार ये सेटअप करना है और किसी एक दिन मैं डायरेक्शन करता हूँ, तो वो HCF है. Hmm. ये LCD ये है कि मेरे को रोज ये Get सेटअप बनाना comfortable है. with that. Hmm. Are you comfortable with that or not? If you're not comfortable, don't take that job. Hmm. Because then you'll say ये मेरे साथ क्या हो रहा है. Hmm. I didn't sign up for this because you signed up for a title. Hmm. Got it. And tell me about, these professional courses, a master's degree, an MBA. Like, do you feel that in your journey and to who you've become today and the designation that you hold, it was important for you to have done an MBA? Like, did it really, really help? So And how did it help? If it helped, how did it help? If it didn't help, like, what would you have done with your time instead? I think it helped. Hmm. Definitely helped, but helped in not in a classical way of कि मैंने वहाँ पे पढ़ाई में कुछ सीखा इतना कि वो मेरे बहुत काम आ गया. Right? It helped in a just like ISB की बात करता हूँ. Yeah. ISB just teaches how to manage time. एक साल आपकी ऐसी रगड़ाई होती है और आपको सब कुछ करना होता है. Right? तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट इतना सॉलिड हो जाता है. एंड दैट आई थिंक इज अ सुपर पावर. Hmm. तो मेरा एक्चुअली आप पूछो तो मेरा एक ही सुपर पावर है कि मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा एकदम टॉप परसेंटाइल है इन लाइफ. वो मैंने काफ़ी हद तक वहाँ से पहले भी आता था. आई वॉज गुड एट इट एंड ISB में इट बिकेम वेरी वेरी गुड. राइट. सेकेंड इज आपका नेटवर्क. Hmm. आप किन लोगों को जानते हो, आप दैट डिफाइंस अ लॉट. सो आई थिंक ISB का नेटवर्क, सो आई हैव टू आई विल से मे बी नाउ 3 networks, professional networks, Yeah. which feed 90% of my opportunities. Hmm. एक है ISB, दूसरा है McKinsey, थर्ड है OYO. Hmm. राइट. OYO में भी टैलेंट डेप्थ बहुत अच्छी थी. Yeah, absolutely. Hmm. तो आई थिंक ये 3 जो नेटवर्क्स हैं, 90% मेरा या तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, या मैं हायरिंग करता हूँ, या फिर इट ऑल कम्स फ्रॉम देयर. Hmm. Now either you're in those networks or you're not part of those networks. Right? To that extent I think it's very powerful. Yeah. सब्जेक्ट की पढ़ाई आई डोंट थिंक दैट मैटर्स बियॉन्ड अ पॉइंट. सो वो स्पेशलाइजेशन पे लोग फोकस करते हैं कि अच्छा मार्केटिंग करूंगा, फाइनेंस करूंगा. इररिलेवेंट. But for certain roles where a network is really not required, which could be a specialist ऐसा कोई रोल नहीं होता profile. है. मतलब for opportunities, ऐसा it's कोई रोल होता ही important. नहीं है. Hmm. So then you are saying that you're pro doing a master's for the network आई that एम it gives बट you. डू अ मास्टर्स. पर दो चीजें, मास्टर्स करना है मेरे हिसाब से अच्छी जगह से करना चाहिए जहाँ का नेटवर्क ट्रूली वैल्यूएबल है. Hmm. उसके अलावा अगर सीखना है तो सीखने के लिए किसी कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है आज के दिन में. आज के दिन में सबसे अच्छा कंटेंट Yeah. तो आप लोग बना रहे हो. Thank you for Right. that plug-in. और यू नो आपको आज आप यू कैन बी सिटिंग इन इंडिया, आप स्टैनफोर्ड के कोर्स कर सकते हो. Hmm. आपको शेफ बनना है, सबसे दुनिया का सच्चा शेफ आपको यूट्यूब पे सिखा रहा है कैसे बनना है. Hmm. तो आपको किसी कॉलेज जाने की क्या जरूरत है. सीखने के लिए कॉलेज जाने की जरूरत है ही नहीं अब, बिल्कुल नहीं है. और प्रोग्रेसिवली आगे जाकर तो बिल्कुल नहीं होगी. Hmm. तो कॉलेजेस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू इम्पार्टिंग एजुकेशनल नॉलेज आर लार्जली redundant, Yeah, that's true. right? Hmm. But as networks, I think they're still very powerful because people still want the degree and the network effects kicks in. I did your F check from your ISP batchmate, हाँ. Ankur. He was here for a shoot today, Variku. Okay. And he said that you're from the same batch. And I tried very hard. I was like, kuch to batao, like give me some dirt about his college life that I can talk about. And he described you as someone who was already set up for success in college. Like someone who was the president of the consulting society. And I think you were a part of like a lot of different groups, events, activities. You had already done consulting, then you went back to consulting. So I mean, I didn't get what I was seeking, but I did get to know about who you are as a person. But these activities or events that you did in college, did that help in some way? Oh yeah. So I have fun. तो मेरे को Yeah. मजा आता है करने में. ऐसा नहीं है कि कोई एक्चुअली मैं बहुत कम काम इसलिए करता हूँ कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है उसको, या ये करने से ही हो जाएगा. आई डू मोस्ट थिंग्स फॉर फन एंड दैट हेल्प बिकॉज इट रिलीजेस द बेस्ट आउट ऑफ मी. राइट. Even if I think of Calcutta college days, any fest in the city, any fest, Antakshari, dumb charades, theatre, कुछ भी करा लो मेरे से, राइट. वो मैं तैयार खड़ा रहता था. स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हर टीम में था, राइट. तो वो बचपन से आई वाज लाइक दैट एंड दैट कंटिन्यू टू ISB वेयर आई एम वेरी सोशल. आई विल बी पार्ट ऑफ मोस्ट नेटवर्क्स. इनफैक्ट फन स्टोरीज की, आई वाज द ओनली स्टूडेंट इन ISB, probably its history, I don't know, who actually made money out of ISB. Really? How? Yeah. So मेरी फीस तो मैकेंजी दी थी. अच्छा. ठीक है. हाँ.
और मैंने वहाँ जाके हर कंपटीशन में वही उसी में पार्ट लिया जिसमें पैसे होते थे, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो जितने कंपटीशन में 50,000 का चेक, 1 लाख का चेक, एक में आई थिंक 3 लाख या 4 लाख का भी था, तो वो So your एंटर करते salary थे started in college एंड देन only. वी यूज्ड टू विन मोस्ट, राइट? तो आई थिंक आई वुड हैव मेड अनदर maybe 6 to 10 lakh rupees on top of fee being paid by McKinsey out of Nice. ISB. So I did not walk out with a student loan. I walked out with Out some with- income out of college. Yeah. That's damn cool. So basically, college is for network and cash. Cash. Both, if you know if you how can make to. it, if you know how to do it. Yeah, awesome. We've spoken of professional setups in sort of like what is required for the white collar space, right? What is required for an office. But now let's move to your current role, where delivery executives are a huge part of what you do. What does it take to become a delivery executive? Actually, not much, because there's no education minimum bar, right? आपको Yeah. क्या चाहिए होता है? आपके पास अगर एक आधार कार्ड है, कुछ व्हीकल्स के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, कुछ व्हीकल्स के लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए होता है। जैसे ईवी है, कम स्पीड वाली व्हीकल्स में लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, एंड आपको मेहनत करना आता है, यूर ऑन, और एक मोबाइल फोन चाहिए, राइट? तो यूर ऑन। तो द बार, इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया टुडे। एंड सुप्रिया, सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन, लेट मी एक्चुअली डिफाइन, बिकॉज डिलीवरी पार्टनर्स जो हम बोलते हैं, वो कोई एक टाइप का कैरिकेचर नहीं है। एक्चुअली 5 या 6 अलग अलग वजह से लोग करते हैं और टाइप के लोग आते हैं। आप जैसे ये इमेजिन करो, बॉम्बे में किसी भी दिन शायद 15, 20, 30 हजार आदमी बॉम्बे में आता है, पॉकेट में 500 रुपए और दिल में उम्मीद, बस, और कुछ नहीं उसके पास, राइट? दैट पर्सन कैन गेट ऑन टू अर्निंग a few hundred to 1,000 rupees in a day with us, and करते हैं वो लोग, right? And then they figure out कि ये करना है, लॉन्ग टर्म नहीं करना है तो कुछ और करते हैं, बट वो एक्चुअली उनका फर्स्ट पेचेक हो जाता है, जिससे वो खोली ले लेते हैं या कुछ, you know, first few meals come from there. Yeah. They settle on. That's one piece. Second is students. Especially I've seen this in tier 2, tier 3 towns, जहाँ पे the students are funding either part of the education or some top up, कोचिंग कर रहे हैं, कोई और थोड़ा खर्चा और आ रहा है जो कि माँ बाप नहीं भर पा रहे हैं, तो दे अर्न द मनी। एंड थर्ड इज एक्चुअली वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक अब्जॉर्बर्स ऑफ द सिस्टम। नौकरी चली गई है। अभी एक वायरल पोस्ट हुआ था थोड़े दिन पहले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी चली गई थी, उसने लिखा था कि आई वेंट एंड बिकम, बट वो दैट बिकेम वायरल, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी जाती है। कितने लोगों को दुकान से निकाल दिया, किसी को मालिक को पसंद नहीं आया, निकाल दिया, वो करेगा बेचारा, राइट? आई थिंक शॉक अब्जॉर्वर सबसे बड़ा यही है, बिकॉज उसके बाद अगर बाइक उसने ले ली, बाइक लेने की आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इतनी कंपनियां हैं जो आपको मिनिमम अमाउंट में डेली रेंट पे दे रही हैं, राइट? फोर्थ इज, विच इज आई फील द मोस्ट पेन फॉर ऑनेस्टली, इज द सेकंड शिफ्ट वर्कर। तो वो ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है एज अ सिक्योरिटी गार्ड ही वो, और उसको एक एडिशनल इनकम चाहिए, तो वो 4 घंटे और लगा रहा है आकर के। और एक क्लासिक है, जब भी मैं देखता हूँ कि उनसे पूछता हूँ कि भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, दिस इज क्वाइट हार्ड वर्क, राइट? कॉमन फैक्टर कम्स लार्जली कि बच्चों की पढ़ाई के लिए। वो जो इंडियन एक कीड़ा है कि बच्चे को पढ़ाना है, उसकी कोचिंग देनी है, इंग्लिश पढ़ाना है, वो मतलब फ्रॉम HNIs टू एब्सोल्युटली यू नो मिनिमम वेज लेवल, सबके लिए सच है। लास्ट है फुल टाइम, कि वो आए हैं, वो या तो सोच के आए थे कि करना है। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है, दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम वेयर practically anybody can come in and start working with our training and some tools. And where do women fit in this system? Not as much as we like it to be. The percentage is low today, right? And there are some social taboos in terms of women doing this. Yeah. I think मैं दो चीजों को इसके लिए I think I'll blame two reasons for this. One is us. हमने इतनी मेहनत नहीं की है जितना करनी चाहिए थी, right? I have plans to do that some other. I think we should have done better there in terms of just thinking about it a lot more than giving up कि ये तो नहीं हो रहा है, right? Second is I think society में एक towards women एक बहुत ही patriarchal approach रहा है कि सबको लगता है या तो मेरी बहन या माँ है, right? किसी को नहीं लगता कि वो इंडिपेंडेंट एक एंटिटी है जिसको खुद का डिसीजन लेने की जरूरत है और कर सकती है। तो वो जो एक पैट्रियार्कल अप्रोच है, उससे क्या होता है कि भाई नहीं, रास्ते पे स्कूटर चला के नहीं मत करो, इससे अच्छा कोई दुकान में काम कर लो, इससे अच्छा किसी घर में मेड बन जाओ जाके, राइट? कुछ भी कर लो पर रास्ते पे मत रहो, कुछ भी।
And that is not true. Actually, it's one of the safer employments. Absolutely. The number of incidents, because you're always operating in a busy area. Yeah. It's very unlikely, especially if you take the right shifts, etc., that you're working in a place where you are the only one, for example. So some taboos exist, but हमको इस पे मेहनत और करनी चाहिए. I think this is a fit case for women employment, क्योंकि two wheeler सबको चलाना आता है. Or you can learn, it's very easy. And also, you know, fit case for many use cases. Let's say I know a lot of women want to work only when their kids are in school. कि बच्चे को स्कूल भेज दिया और 6-7 घंटे अपना उस समय काम करना है. This is excellent because the moment the kid goes, आधा घंटा बाद आपने अपनी शिफ्ट चालू की, बच्चे को आने के 1 घंटा पहले बंद कर दी. एंड यू हैव फुल फ्रीडम टू डू दैट. कोई बॉस नहीं है आपका, कोई आपको बोलने वाला नहीं है. आपके बच्चे का एग्जाम है, आप बंद कर दो ऐप, राइट? कोई बोलने वाला नहीं है. तो इन अ वे आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर वुमेन. Are there cities where you see more uptake? हाँ, चंडीगढ़ में दिखता है, कुछ कुछ सिटीज में दिखता है. It's so funny because Chandigarh also has this visual image of a lot of women actually driving two हाँ, wheelers. तो वो उसका कोरिलेशन है ना. हाँ. गुजरात में दिखता है. तो जहाँ पे भी आपको देखिएगा कि वुमेन टू व्हीलर जहाँ चलाती हैं, वहाँ पे नेचुरल हमको भी वो इन्फ्लो आता है. और जहाँ पे नहीं चलाती हैं, जैसे मैं कलकत्ता में बड़ा हुआ था, मेरे को कलकत्ता में बहुत कम देखा है, राइट? फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई. तो वहाँ पे सप्लाई भी कम आती है. बट अहमदाबाद में आप देखो, गुजरात में पूरे आप कहीं भी जाओगे आपको देखेंगे कि वुमेन ड्राइव अ लॉट ऑफ टू व्हीलर्स देयर. और कहाँ पे मैंने देखा, चंडीगढ़ में तो श्योरली देखा है. पंजाब में एक्चुअली और भी शहरों में है. दिल्ली में उतना नहीं चलाती हैं लड़कियाँ टू व्हीलर्स. तो हाँ, वो भी राइट. एक्चुअली वो कोरिलेशन हाई है कि टू व्हीलर्स का जहाँ पे यूजेज बाय वुमेन इज हाई, this becomes a natural extension of that. Yeah, I mean one way to solve it, for like I'm scared to drive a two wheeler, but I don't know why, but it's just a thing, right? Like I can drive a car, I can, like, I don't know why, but a scooter just scares me. You come and do deliveries for us. Yeah, I'll do it one day. I want to go on ground and see. But you know, you've mentioned it, so now let's talk about it. I saw this video, I think Rocky and you went and did deliveries, and also like accounted last for week, feedback, yes. right? Last week. So how was it? Great fun. It was like A7. What did you deliver? What was your order like? Chayos का पैकेट था. Oh, nice. Chayos का पैकेट is what I got. Yeah. And I think हमने Bolt लॉन्च किया है, which is a 10-minute food delivery service. तो Bolt पे ना 2 misconception है. तो one of the reasons for the video is also to say that this is not true. एक misconception ये है कि ये 10 मिनट में आ रहा है तो ये खाना कौन सा है, वही वाला है, सेम है. Chayos में आप जब ऑर्डर करते हो तो सेम खाना है जो which comes in 30 minutes all. और सेकेंड तो ये था कि भाई ड्राइवर्स बहुत तेज चलाते हैं, चला ही नहीं सकते क्योंकि न कोई उनको पता ही नहीं होता बोल्ट ऑर्डर. रीजन इट कम्स फास्ट इज बिकॉज द मेन्यू इज शॉर्ट प्रेप मेन्यू. मतलब जो भी चीज 4 से 5 मिनट में निकल सकती है वो है उसमें. और दैट इज ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ द मेन्यू इन मोस्ट केसेस. एंड सेकंड इसलिए आता है क्योंकि हमने शॉर्ट माइल किया हुआ है. बोल्ट की सर्विस हम किसी भी रेस्टोरेंट से 5 किलोमीटर नहीं भेज रहे हैं, अप टू 2 किलोमीटर भेज रहे हैं. So I think the whole reason was that, but Rocky is a legend. I think we are great too. He just joined us as Swiggy ambassador. So he's full-time working for us now in terms of helping us think through content, think about restaurant relationships. He has a great network of friends all across. So very excited. मैंने बाइक बहुत दिन बाद चलाई थी, थोड़ा सा नर्वस था. But I used to ride a bike, a Yamaha in college, but this was Splendor. तो पहले वो चेक कर रहे थे कि 4 down है, 4 up है, क्या है, सब चल रहा था. Nice. And how important is it for you to do things like this? You know, काफी लोग when they see things like this, it's a little bit like लोग skeptically देखते हैं कि you know वीडियो बनाने के लिए किया, LinkedIn पोस्ट डालना था इसलिए किया. But as someone who's leading a company, as someone who's been in positions like this, how important is going on ground and getting your hands dirty? Yeah. देखो, एक तो मैं बोलना चाहूँगा कि and again I'm not preaching, but frankly if your video goes out to young people, skepticism तो कम कर दो. लाइफ में इन जनरल अच्छा होता है. स्केप्टिकल होने में तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, राइट? बिलीव करने में मेहनत लगती है, राइट? सो एंड ऑल्सो आई फील वीडियो बना के अगर कुछ लोग इंस्पायर होते हैं उससे तो बिल्कुल करना चाहिए. तो उसमें कोई आई एम नॉट डिफेंसिव एट ऑल, राइट? कि अगर पीआर के लिए भी तो करना चाहिए, क्योंकि पीआर का मतलब क्या है कि लोगों को बताना कि भाई ये भी हो सकता है. तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब ऑनेस्टली. बट ग्राउंड पे जाने से आई थिंक 2-3 चीज़ें होती हैं. एक होता है सिग्नल ग्राउंड टीम्स को मिलता है कि भाई ये लीडर हमारे साथ है, एंड दैट सिंबॉलिकली इज इम्पोर्टेंट. कि वो अदरवाइज वो लिंक्डइन में कमेंट्स आते हैं कि गेट आउट ऑफ योर बोर्ड रूम्स. अरे बोर्ड रूम में हम क्वार्टर में एक बार जाते हैं 1 घंटे के लिए, राइट? तो वो कमेंट तो ऐसे भी काफी बचकाना होता है, बट ठीक है. तो इंस्पायर करते हैं. सेकंड इज व्हेन यू गो एंड सिट डाउन, एंड दिस आई डू लाइक 5 times a month. This one came on video, but frankly
many of it is not recorded, much of Yeah. it is not recorded, is you get to बहुत जल्दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ जाता है. क्योंकि कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि आप जब बैठ के बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं ना, वो मैटर को सुपर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. बट व्हेन यू गो एंड सिट विद द फ्रंट लाइन, वो आपको बता देते हैं कि देखिए ये 5 चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, ये 5 चीज़ें नहीं चल रही हैं, ऐप में ये प्रॉब्लम है, एंड थिंग्स मूव फास्ट. थर्ड, इट इज़ जस्ट आई थिंक द फ्रंट लाइन हैज़ टू फील that the senior management is There. there for them, Hmm. right? And it's part of their job to go out. And I feel this is not a PR stunt or an opportunity, or it's just base work. This is part of what I do. Sometimes out of the 10 days I do it, one day it may get recorded and put out for some reason. Yeah. Speaking of other videos that have been up on the internet, there's another one which came up from I know think which an one is this. event Yeah. that you were speaking at where TechSpark. yeah, where you're talking about आपकी स्माइल से समझ में आ गया कि आप hustle वहीं जा रहे हो. हाँ. culture and everything, and you know, I mean, this is what the world is talking Yeah, about yeah, right now, yeah. right? And I just want to know, because you've been in consulting, and consulting is known for its hustle culture in a way, or people pride the fact that they're working on, you know, like multiple clients, 18 hours, 20 hours, but taking business class flights and then showing that off as well. But Starbucks का हाँ, of course. So where did you stand back then when you were in McKinsey on this thought, and what sort of led to this realization कि मतलब घर जाओ सो मैंने आपको अपने बोला मैं पर्सनली टाइम मैनेजमेंट में एकदम 1% हूँ, राइट? तो मेरे को कभी तकलीफ नहीं है उस पर. बट लेट मी स्टेप बैक एंड व्हाट आई वाज वांटिंग टू से, बिकॉज समटाइम्स द रील्स गो वायरल एंड इट कैप्चर्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ yeah what was said and what was meant. So एक तो मेरे को इस हसल वर्ड से प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर डिक्शनरी मीनिंग जाके इसको देखो तो उसके जो मोस्ट चैरिटेबल डेफिनेशन ये है कि किसी को अनरीजनबली पुश करना या धक्का मारना, राइट? अनचैरिटेबल मीनिंग जो है उस पर मैं जान ही रहा हूँ. इट्स नॉट गुड फॉर मी टू से इट ऑन कैमरा. आप लोग खुद पर गूगल करके पढ़ सकते हो कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है. वो तो इतना लिबरली क्यों यूज होता है मेरे को समझ में नहीं आता बात कभी. एनीवे, जाने दो. चलो मान लेते हैं कि वो लिटरल सेंस में नहीं यूज करते हैं लोग, वो एक और सेंस, किसी और सेंस में. माई पॉइंट इज हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट? एब्सोल्युटली. विल यू वर्क समटाइम्स लॉन्ग? समटाइम्स इज ऑपरेटिव वर्ड. वेरी लॉन्ग आवर्स इन ऑफिस? एब्सोल्युटली. विल यू गिव अप एवरीथिंग इन लाइफ फॉर योर वर्क? होपफुली एब्सोल्युटली नो, राइट? क्योंकि हर इंसान के 5 जिंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं. एक होता है काम अपना, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड कंट्री. अगर 120% आप एक में दे दोगे तो बाकी 4 करोगे कैसे? और नहीं करोगे तो जिंदगी जी क्यों? And this time management thing, you said it a couple of things that you're in the top 1 percentile. ISB also taught you all of this. Like, how do you become better at managing तो your time? इस पे ना जो and continuing the point, I think if you think about it, and the best teams are driven with a lot of clarity. The leaders are clear. The hustling teams, which sometimes are not so great, are confused. They spend long hours in office and they get into the vicious cycle because there is no clarity. आज ये करो, कल वो करो, परसों वो करो, कुछ करते ही रहो बार बार, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना, लीडर क्लैरिटी नहीं दे रहा है. सो ऑल लीडर्स एंड ऑल मैनेजर्स इन माय ओपिनियन, एंड आई रिक्वायर दैट ऑफ माय टीम्स, शुड बी फर्स्ट चीफ क्लैरिटी ऑफिसर्स. और बाकी आपकी फंक्शनल और बिजनेस जॉब बाद में है उसके. और लास्टली, लुक, वेयर डू यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम? स्टीव जॉब्स ने अच्छा कंप्यूटर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो सिर्फ कंप्यूटर बना रहा था. ही वाज आर्ट कॉनोसियर, ही वाज अ डिजाइन गाय. वहां से सीखा कुछ, वहां से सीख के उसको लेके आया. आप कुछ करोगे ही नहीं, कुछ जानोगे ही नहीं. But that's not what people know him for also now. हाँ, but Like, it's they true. don't remember him for that. They But remember it is him true. for the The hours. inspiration for his so any job you do, Yeah. even if you have some exposure outside of what your work is, it's all osmosis. It comes back. You mentioned that you were doing this post OYO, and I think I forgot to really touch on OYO during the first part of this conversation, but more on, I think, speaking on leaders that you worked with, right? And I don't know Harsha, I don't know anyone at Swiggy, so I can't talk about that as much, but I do know Ritesh. So and I know what kind of a person he is, like, you know, how humble he is, and but how focused he is in meetings, and like in his aspirations and dreams and goals and stuff. Absolutely. So when you compare the corporate world, when you compare people you worked at with Max or with McKinsey, and you compare it to who you're working with now or did with Ritesh,
what is the difference that you see between startup founders and corporate leaders? Or देखो कॉर्पोरेट लीडर्स बोल के कुछ नहीं होता है, hmm, राइट? इवन मैक्स में I work with Aniljeet, who has founded company since like the last 30 years. yeah, So he's as much a startup guy. Startup. He started up like 3 different times in his Yeah. life. but right? traditional, I mean, I would say Not traditional business traditional. I versus think startup. no, I don't agree. I think some of the industries he started there were first to India. Hmm. जब इंश्योरेंस प्राइवेट में सेक्टर में आया था उस दिन लॉन्च किया था. He was the first licensee of telecom in India. It's Orange in Bombay. Yeah. So I don't think it was traditional. It was Hmm. actually cutting edge at that Hmm. point in time. आज के दिन में सोच के लगता है कि हाँ टेलीकॉम Hmm. तो बहुत चांस है, बट उस टाइम पे तो क्लिनिकल रिसर्च में पहले चालू किया था. तो आई थिंक थोड़ा सा आई डोंट ड्रॉ द डिस्टिंक्शन एज मच बिकॉज आई Yeah. वर्कड विद अक्रॉस. आई थिंक दे शेयर सम वेरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैविंग ग्रेट विजन, Hmm. एबिलिटी टू हाई ग्रेट टैलेंट. पर थोड़ा आई विल से कि जो यंग क्रॉप ऑफ फाउंडर्स हैं उनमें डिफरेंसेस अगर मैं बोलूँ तो एक टेक्नोलॉजी अप्रिसिएशन बहुत हाई है. Hmm. They really understand how to use technology to do things. Hmm. Second, I think is they're also born in a different India, right? And the ecosystem environment is very different. Yeah. आपके पास capital access है, आपको डर नहीं लगता है, Hmm. आप well traveled globally largely very early ages से. Talent depth is so high in the country. Hmm. So I think we also are living in a very fertile soil for great founders to grow large trees, जो कि पहले नहीं था. Hmm. तो those differences exist, but broadly I think ऐसा नहीं है कि पहली बार बिजनेस से बॉर्न हो रहे हैं. इंडिया में 100 साल से बिजनेस बन रहे हैं. When you're speaking to these young breed of founders, like you described it, you've of course come from a different background where you have experience which is diverse because of the industries that you've come from, but most of the people you're working with probably would have just been in one industry type. And when there's conflict, how do you manage that? And like, how do you unlearn what you know to be able to talk to them? And and when does ego come in the way, or does it not? देखो अनलर्न का तो ये है कि मैं पुराना जो भी एक्सपीरियंस अपना, तो अभी मैं स्विगी में हूँ तो ओयो का एक्सपीरियंस, मैकिंजी का एक्सपीरियंस, मैक्स का एक्सपीरियंस, आई विल नेवर सेट ऑन डे टू डे बेसिस कि वहाँ मैंने ऐसा किया था. मतलब पीपल गेट पुट ऑफ, Yeah. पीपल से वहाँ किया था तो यहाँ रेलेवेंट है नहीं है, बट इट इज मसल मेमोरी फॉर यू. You it is inside you. You know कि how to react to a situation and how do you use it. Conflict very simple. Truth finding जरूरी है conflict के लिए. It doesn't matter who said what and who believes what. What is the truth first? Or closest to truth you can get to. And second is I am a big believer कि मेरे से कोई आके ना किसी और के बारे में बिच कर नहीं सकता. Possible नहीं है. क्योंकि उनको रिएक्शन मेरा पता है. मैं उस इंसान को उसी रूम में बुला लूंगा उसी समय. I've done this hundreds of times. आप आके मेरे को बोलो कि मान लो मनोज ऐसा कर रहा है, मैं बोला एक सेकंड चुप जा, वेट करो. मनोज जरा आना. अच्छा बैठते हैं. बताओ, अब बताओ. अब आप भी टेम्पर्ड बताओगे. Yeah. जो सच है वो भी सुन रहा है. तो आई डू दिस रेगुलरली. कॉन्फ्लिक्ट में अगर दो लोगों में तो वो दो लोगों को रूम में होना जरूरी है. ईगो पता नहीं यार, आई डोंट नो, उसका कोई ज्यादा यूज होता नहीं है. मतलब वर्ल्ड डजंट केयर अबाउट ईगो ना. Yeah. आपको फिर वो तो क्यों रखना फिर, जिस चीज से कोई फायदा ही नहीं है उसको लेके तो बोझ है वो तो. We spoke a little bit about what not to post on social media, or how reference checks are happening and your profiles are being viewed. But I think a very important part of Look, first of all I want to clarify कि I am no one to tell anyone कि सोशल मीडिया क्या पोस्ट करना है. मैं क्या करूँगा वो मैं वो बता रहा हूँ. राइट, आई विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल. जैसे I'll tell you my social media policy कि कौन से कमेंट में डिलीट कर देता हूँ या ब्लॉक कर देता हूँ. मैंने एक पोस्ट किया है, यू क्रिटिक द कंटेंट, नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम टू. यू से आपके थॉट में यू प्रेज इट, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम. यू से कि ये अप्रोच में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम. सो एनी फॉर्म ऑफ डायलॉग क्रिटिक इज एब्सोल्युटली वेलकम. बट व्हेन यू कम डाउन अब्यूजिंग, राइट, not happening boss. Yeah, that's not right. So I will block and I'll delete because that's not the point. और मैं बात कर रहा हूँ एक ही, आपने डाल दिया Z, वो फिर मैं इग्नोर करूंगा, वो डिलीट नहीं करूंगा, वो इग्नोर कर देता हूँ मैं. क्योंकि टॉपिक हो रहा है कि जोश टॉक्स में आज क्या चल रहा है, आपने बोल दिया कि असम में बारिश हो रही है, वो क्यों हो रही है बताओ, राइट. तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है उसका डिस्कशन का. सो माई सेंस इज कि सोशल मीडिया इज लाइक एनी अदर पावरफुल टूल. इट कट्स बोथ वेज. आप उसको ढंग से यूज करो तो बहुत पावरफुल है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट मीडियम फॉर चेंज. आई ऑल्सो यूज इट वेरी इफेक्टिवली, होपफुली, राइट. If you use badly, it is destructive. I think it's on us to use it well.
And how important is it to have a personal brand to get hired? Like when you're looking at a candidate and you have two profiles which are sort of similar, but then one is someone who's really putting themselves out there on the internet. एकदम भी जरूरत नहीं है. Hmm. At till you are very senior, actually कभी भी जरूरत नहीं, मैं तो कहता Hmm. हूँ. It has no relevance Hmm. except for certain jobs. So for example, if you are applying for a social media position, I understand, but आज अगर कोई आ रहा है, उसकी कोई मान लो बोलता है कि मेरे पास कोई एक भी प्रोफाइल नहीं है, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो आई थिंक इट्स ओवररेटेड Hmm. कि आपकी सोशल प्रोफाइल क्या है, आपको कितने लोगों को वहाँ से डिस्कवर करते हैं, राइट? मेरे So लिए you're saying better to not invest time while you're in नहीं, college आप करो doing क्योंकि that. आपको अच्छा लगता है, आप करो हाँ. क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आप एंगेज करना चाहते हो, आप कुछ आपका कुछ एक पर्सनल एक्सप्रेशन है जो जरूर करना चाहिए. सी रेफ चेक इज अ क्लीन इज लाइक अ सैनिटी चेक. Hmm. saying कि सोशल पे क्या डाला उसको, हम ये याद नहीं पड़ते कि इसके थॉट कितने पावरफुल है, राइट? आई डोंट थिंक दैट हैपेंस एट ऑल, बट इज द गाय ऑफ रेल्स कंप्लीटली. Hmm. दैट इज व्हाट वी चेक. Got it. And talking about like today, and I think मतलब post COVID बहुत ऐसा हुआ है कि लोग जॉब बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं. And एक expectation है, I think straight from college कि within 1 year 2 years you're going to become someone really big in an organization. I think a lot of stories have been glorified on the internet where you've got ownership, accountability, etc. and you're ready to lead. So people come in with that very short view of कि एक साल में I want to rise to the top, and if I'm not, then let's switch, let's keep increasing our pay scale and let's move. Do you see that also in profiles that come your way, and how do you look at people who've just been switching roles? Very poorly, honestly, right? So I've done most jobs in blocks of that 2 and 5 years at least. So my McKinsey was 10 years, Max was 7 years, OYO was 3.5 years. I've been 2.5 years here, hopefully much longer, right? So when I take up a job, I think a 5-year frame. Simply 5 साल के पहले कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है. आप 1 साल में कर क्या पाते हो? 6 महीना तो आपको कंपनी समझने निकल जाता है, 3 महीना और कुछ और हो जाता है. So by the time you're out, you've done nothing. So if you've done a 4-year stint with 3 companies, 4 companies, you're actually useless, honestly, according to me. Can it happen? Can one-off happen? No problem. Yeah. You can obviously land up in a situation you don't like. And to exit that situation is good. But it can't be the pattern. It can't be that you've gone in and 8 months, 1 year, ye wo. So for me, it's a big red flag. Big red flag. Not because ki there's a view I have ki you don't have a right to change. But I have a clear view ki under 3 to 4 years, you cannot create any significant impact anywhere. पॉसिबल नहीं है. आप धंधा बना, आप कब से बना रहे हो कुछ स्टॉक बताओ? 10 साल होने वाले. 10 साल होने वाले ना, और 10 साल लगेंगे कुछ बड़ा बनाने में. ऑलरेडी यू डन वेरी वेल, बट रियली बड़ा 20 साल लगते हैं. एनी बिजनेस यू वांट टू क्रिएट टुडे, आई सेड कि लोग कहते हैं कि यार मैं स्टार्टअप करना सोच रहा हूँ. हम लोग ये नहीं सोचो, ये तो जरूर सोचो, पर ये सोचो कि कैन यू डिले योर ग्रेटिफिकेशन फॉर एटलीस्ट 10 years, बट दैट्स व्हेन सम प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट यू विल सक्सीड, राइट? तो जॉब में 8 महीने में कैसे हो जाएगा? 9 महीने में तो बच्चा पैदा होता है. I don't know how that's correlated, but chalo anyway. Anything. For the sake of saying. नहीं, एक ना वो एक कहावत है, भूल गया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. फल वही तो ऋतु जब सीजन आता है तो उसके लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है. सिंपली भी बता दो, मतलब धीरे धीरे रे मना, मतलब देयर इज स्लोनेस हैज सम वर्च्यू. रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली जाके पानी 100 घड़ा पानी डाल दिया, इसका मतलब पेड़ एकदम से बढ़ जाएगा एक दिन में. उसका एक स्पीड होती है. ऋतु जब सीजन आएगा तब फल होगा, और वो सीजन आता है. तो आई थिंक देयर इज अ ग्रेट वैल्यू टू सम कामनेस, सम धैर्य, राइट? एंड आई थिंक माई आइडियल डेफिनेशन ऑफ सम इम्पैक्ट इन वर्क इज अ स्टिंट बिटवीन 3 to 5 years. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 20 साल कहीं पे बैठे रह जाएंगे, बट 3 से 5 साल में उसके नीचे तो कुछ भी आपका इम्पैक्ट हुआ है, आई रिफ्यूज टू बिलीव. What's been your longest tenure? 10 years, McKinsey. 10 years. Did you ever feel at any point were you But ever McKinsey scared? में 3-4 साल एक्स्ट्रा लगा दिया था, वो भी मैं मानता हूँ, राइट? फ्रॉम अ लर्निंग स्टैंड पॉइंट. But that's also because आपका काम बहुत डाइवर्स था, right? नहीं, मोमेंटम था ना, रिस्क कवर्स हो गया था, इसलिए नहीं था. Got it. So McKinsey was pre-MBA and then post-MBA both, right? Because both, McKinsey yeah, paid for the MBA correct, also that correct, you mentioned. correct. Did you ever feel you were going to get fired? In McKinsey once on a study, yes.
What happened? पर ऐसा किसी और का प्लान नहीं था, मेरे को लगा था कि हो जाएगा. But नो, ऐसा इट वाज क्या अ हुआ सेक्टर था? चेंज. सेक्टर में रेगुलेशन चेंज हुए थे. क्लाइंट वाज वेरी नर्वस, काफ़ी उथल पुथल चल रही थी. टीम कंस्ट्रक्ट उतना अच्छा नहीं था. चीफ क्लाइंट ऑफिसर हमारी टीम में कोई था नहीं. वी वर मिड मैनेजमेंट टाइप दैट टाइम. तो एकदम मतलब लोग लगता था कि कुछ पागल ही हो गए हैं कि. एंड आई वाज यूज्ड नेवर इन मेनी इयर्स आई हैव नेवर बीन इन द सिचुएशन वेयर पीपल आर नॉट ईटिंग ऑन माय हैंड्स, राइट. तो मेरे लिए अनफेमिलियर टेरिटरी थी. So I used to for a period I couldn't sleep and I felt कि this is my last, and it wasn't so much a loss of job, that never bothers me. It was more loss of face. saying कि शक्ल कैसे दिखाएंगे अगर ठीक नहीं, रिस्पेक्ट लूज हो जाएगी, राइट. तो वो एक बार हुआ था, पर उसमें सीख भी लिया कि अरे इसको भी, इस सिचुएशन को भी निकाल, फिर एंड इट टर्न अराउंड फाइनली, वी डिड वेल. तो एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि इतने खराब सिचुएशन से भी निकाल लिया तो कुछ कर ही लेंगे. Why doesn't the loss of a job bother you? क्यों वादा करेगा, हम सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए हैं, राइट. टॉप 0.1% इंडिया को बिलोंग करते हैं, राइट. क्या हो जाएगा, 6 महीने घर बढ़ जाएंगे. मैं अपने 10, मेरे पे तो 10 पेट्स हैं, उनके साथ खेलूंगा, मजे करूंगा, ट्रैवल करूंगा, फोटोग्राफी करूंगा, बहुत अच्छा होगा, राइट. और वर्स्ट केस क्या है, 5% 10% सैलरी कम हो जाएगी, उससे ज़्यादा डाउनसाइड क्या है. 2 हाथ है 2 पैर है, कर लेंगे कुछ. I love it. I love it how you can be this calm, because half the times I think the world is just anxious, right? Because of how No, things are also going. we truly suffer more in our imagination than we suffer in reality. हमारे इमेजिनेशन में हमको जितनी तकलीफ मिलती है उतनी रियलिटी में कभी होती ही नहीं है. तो अगर हम अपने इमेजिनेशन की तकलीफ को कम कर दें, हमारी रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है. आई थिंक एक एरिया जो जिसके बारे में हमने बात नहीं की फ्रॉम अ वर्क प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू इज मैनेजिंग पॉलिटिक्स, राइट. And I mean, obviously different kind of cultures and styles, flat hierarchy, no hierarchy, whatever. There's different ways to do it. But I think it's still something which is like, it's so ugly. It's still there. Like, what do you feel about it? No, as a leader, my job is to eliminate politics. And it is very doable. If the leader is clear, if the leader wants it, politics हो नहीं सकती कंपनी में. How do you do it? मतलब पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिक्स बाय इटसेल्फ इज नथिंग ना. पॉलिटिक्स मतलब क्या है, 3-4 उसके एट्रीब्यूट होते हैं. एक है कि योर परफॉर्मेंस सिस्टम्स आर नॉट करेक्ट. तो आप किसको जानते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस कि आपने क्या किया. तो ये परफॉर्मेंस में हैज टू बी सॉलिड, इट हैज टू बी डेटा बेस्ड, ऑब्जेक्टिव. सिर्फ आपके बॉस का इनपुट नहीं होना चाहिए, 10 लोगों का इनपुट होना चाहिए उसमें. सो दैट्स वन. वो सबसे बड़ा एरिया होता है ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, उसने ऐसा कर दिया, मेरे को इंक्रीमेंट इतनी मिलनी चाहिए थी, उसको इतनी मिल गई. एलिमिनेट ऑल दैट, राइट, बाय जस्ट बीइंग वेरी, हैविंग अ वेरी सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. सेकंड क्या होता है, एनकरेजमेंट ऑफ गॉसिप बाय लीडर्स. एक होता है ना 2 मिनट, तो वो 2 मिनट जैसे कोई बोलता है, मेरे को तीसरी बार, मतलब 2 मिनट नहीं, इधर आओ तो सामने आके बात करो, सबके सामने जो बोलना है बोलो मीटिंग में, राइट. तो द मोमेंट यू किल गॉसिप, सी सम बैंटर इज ओके. आई डोंट थिंक वी कैन बी स्टफी इनसे कि एकदम ही नहीं होगा, जीरो होगा सब कुछ, कोई बैंटर भी नहीं, कोई मजाक नहीं करेगा, वो नहीं, हंसी मजाक चलेगा. बट malicious gossip, right? The moment I engage in it with someone, I give a signal that it is acceptable. वो नहीं करो. Third है, is that a place which welcomes diversity? And diversity is not only of gender. Diversity is of thought. Diversity is of the way people have outlooks toward life. ये 3-4 चीज़ें हैं. इनको अगर आप प्रोटेक्ट करके चलते हो तो पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि पॉलिटिक्स एक मेगा वर्ड है. ऑर्गेनाइजेशन सैविनेस अलग चीज होती है. आई थिंक पॉलिटिक्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन सैविनेस है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का रिदम क्या है, ये कंपनी की स्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, यहाँ पे मेरे को और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए. वहां पे मैं इंकरेज नहीं करता कि आप एकदम बुद्धा बन के बैठ जाओ कि मेरे को कुछ नहीं आता है जी, राइट, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, एवरीवन विल टेक केयर ऑफ मी. ऐसा नहीं होता, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है. आई थिंक इनिशिएटिव, दोज आर टू कंप्लीटली सेपरेट थिंग्स. ऑर्गेनाइजेशन सैविनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, करना सीखना चाहिए. पॉलिटिक्स कभी भी बॉटम लेवल से नहीं होती है, वो लीडर्स ही एनकरेज करते हैं, और लीडर्स का या तो एनकरेजमेंट होता है या बिनाइन नेग्लेक्ट होता है. और दोनों अगर कर रहे हो तो आप एज ए लीडर फेल कर रहे हो. You've been working across so many different companies. You've had different tenures with them. How has your notice period been with each company? And why is that still so bad for everyone? Why do people not perform? Why is it such like what's the reason for it being notice so period stiff? as in कि कितना लेंथ होनी चाहिए? No, not the length, So, but sorry, what's the just question? how people work during their notice period. क्योंकि अपनी को रिस्पेक्ट नहीं करते इसलिए ऐसा करते हैं. अगर आप अपनी को रिस्पेक्ट करते हो
तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप नोटिस पे हो या नहीं हो? I'll tell you, the people I respect the most, and it's a very good question, it's a very crucible time to demonstrate this, Hmm. कि जो नोटिस पीरियड में ना और मेहनत करने लगते हैं वो लोग। ऐसे लोगों को देखा है मैंने, बहुत कम होते हैं पर देखा है। उनके लिए लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट बन जाती है। Hmm. और वो जो करेंसी अर्न करके जाते हैं ना, लाइफ डजंट एंड विद दैट डे ना व्हेन दे Yeah. लीव। इट टर्न्स अराउंड, इट सर्कल्स, सबको जानते हैं, राइट? एंड आई हैव सीन अ फ्यू पीपल लाइक दैट एंड आई ऑलवेज रिमेंबर देम। तनख्वाह तो ले रहे हो ना Hmm. लास्ट दिन तक, Hmm. तो मेहनत कम क्यों होने की? Yeah. नहीं होनी चाहिए आइडियली। You've spoken so much about, the type of people to hire, who not to hire, talent density क्या होती है across different organizations that you worked with. And एक recent video थी या एक story थी जहाँ पर Dipinder of Zomato mentioned that one of the things that happened post IPO was just complacency at a leadership level, right? Because ये एक opportunity है जहाँ पर you're going to make cash for the first time, liquidity is going to come in, and then people react to money in different ways. Yeah. So now that you're running an organization leading from the front and you might go through a similar phase, are you scared of losing talent density? Look, I don't want to comment on any other company because हर company में situation अलग होती है, पर I think not really. I personally I value money a lot. I think it's very very important, but I don't get motivated on day to day by money, right? कि बैंक में कितना आ रहा है उसमें कोई डे टू डे मोटिवेशन नहीं मिलता, साल में एक बार देखता हूँ मैं, right? But the job of good management is to say that, look, you've made some money, but there's more to come, right? I don't, and it's exactly how you feel about an IPO. Yeah. An IPO is not a destination; it's a Hmm. pit stop. I keep saying it's like turning 18. आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है चलाने के लिए गाड़ी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। Yeah, of course your liquidity changes. Yeah. Whatever you're holding in stock becomes liquid and that has some power. पर वो अगर again go back to basics कि are your key leaders having enough unvested stocks कि future में उनके पास है कि नहीं है, So the motivation. तो motivation remains, right? And especially if they see कि हाँ इस company ने reward किया है पहले भी, तो Swiggy has done 3 rounds of liquidity earlier, तो पहली बार नहीं है हो रहा है, तो I don't see a big risk honestly. And a lot of our leadership also is a mixture of people who have been there for a long time and some people who have come in the last 2-3 years. So it's a good combination we are sitting on, right? I 100 में से 1-2 लोग जाएंगे, वो तो हमेशा होगा, but I don't see a big risk. नहीं होगा actually, I'm quite confident. Awesome. I think we've covered a lot. I feel like this has been like a little bit of a masterclass for me also in who to hire, how to hire, what not to hire for, and other aspects. But just summarizing and concluding everything, who or what according to you is an A player? A player is someone whom I can trust to chase my biggest opportunity, and the same person can be my best resource in a crisis. Is an A player. Thanks, Rohit, for this incredible masterclass in hiring, a little bit on who not to hire, on how to lead teams, on how to manage time. I think I came in with the view that you're going to be extremely intimidating because that was my first memory of you. But I'm going back with the view that I have interacted with someone who's super calm, composed, and fun to be around. And I think you are an amazing CEO and your work defines it. And I hope that everyone who's watching emulates this version of a CEO versus what they see and feel on the internet otherwise. So thank you so much for joining in for this conversation. Thank you for having me.